Hello, students. Today we are going to continue our remaining chapter. And before starting, I want to recall the story, whatever we have read up to now. And uh, I'm starting from the first point, where Mahendra was a supervisor in a firm. His job was to supervise different sites. The nature of his job was such that he had to move from one place to another place. Mahendra's needs were simple. He had a servant. He had a servant named Ishwaran, who followed Mahendra without any complaint and cooked for Mahendra, washed his clothes, and kept him company. Ishwaran read Tamil thriller stories, and it affected him so much that even a small incident like a tree that had fallen appeared to him like a frightening beast. Ishwaran described each thing in detail. So he weaved a new story to him like a frightening beast. Ishwaran described each thing in detail. A new story full of thrill, horror to Mahendra every night. He played the role of a TV in Mahendra's quarter. It also we came to know that he was a good entertainer, so he gave the role of a TV also to Mahendra. And one day he weaved a story about a female ghost holding a fetus in her hand, and he described the incident of Tusker who came in his school and who was destroying each and everything in the school. Everyone was frightening with him, but Ishwaran was a very bold and brave boy. He uh, made him silent by doing a task. So we are going to read this incident of his story. So one day a tusker escaped from the timber and yard, and he began to roam about. We read this paragraph yesterday also, but I am going to start from here. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, stirring up wild creepers, and breaking branches at will. Sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Now, in this paragraph, this is told that Ishwaran gives each and every description of the story in a very expressive way. Whenever he tells about the mad elephant, his activities, he stands, get up on the floor and jumps about and stamps his feet also like the mad elephant. Now he tells about the damage which was done by the tusker. He was stamping out on the bushes, tearing up the wild creepers, and breaking branches at his will. So the elephant reached the outskirts of the town. एलिफेंट जो है आउटस्कर्ट्स क्या होते हैं, बाहरी सीमाएं, टाउन के जो है बाहरी सीमाओं पर पहुंच जाता है. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स, सभी फेंसेस जो बाड़ थी या दीवारें थी उनको जो है एक माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ता हुआ जा रहा था. ही वुड कंटिन्यू. इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स. और जब वो मेन रोड पे आ गया तो उसने क्या किया, ही स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स. चाहे वो कोई भी जो है फ्रूट सेलर थे या हॉकर्स थे, उन सब की चीज़ों को उसने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया. जो मड पॉट्स थे, मिट्टी के बने हुए जो घड़े थे उनको तोड़ दिया. क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, उनको वो ख़राब कर दिया. पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, हेल्टर स्केल्टर सॉरी. लोग जो है इधर उधर जो है बड़े दुखी होकर के भागने लगे डर से. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Now the elephant entered in Ishwaran's school
where the students were playing, and he broke the brick wall also. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. All the children who were playing there got frightened, and they ran into their classrooms to protect themselves, and they shut the doors very tight. The beast grunted and wandered about. The beast means elephant. एलिफेंट जो बुरी तरह से जो है घुर्रा रहा था, गरज रहा था और इधर उधर जो है घूम रहा था. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने जो है फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको भी गिरा दिया. टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के जो लिए जो नेट था उसको भी जो उसने फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, उसने जो है चीज़ों को इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया. एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर. हेयर फ्लैटनिंग मीन्स टू केप्ट समथिंग एट अ लेवल, टू ब्रिंग समथिंग एट अ लेवल. उसने जो पानी के लिए ड्रम रखा हुआ था उसको भी जो है तोड़ करके जो है ज़मीन पर एक जैसा बिल्कुल जो है एक लेवल में ला करके पटक दिया. एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जितनी भी शर्ब्स थी उनको जो है अपरूट कर दिया, उनको जो है जड़ के साथ जो उखाड़ दिया. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. उस टाइम तक, मीनवाइल मीन्स जब तक, सभी टीचर्स जो है डर के मारे कहाँ पर चढ़ गए, जो स्कूल बिल्डिंग का टेरेस था वहाँ पर जो है चढ़ के उसकी एक्टिविटीज़ को उन्होंने देखना शुरू कर दिया. दे वर ऑल्सो फ्राइटेंड विद द एलिफेंट. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड the depredation of the elephant. From the terrace of the building, all the teachers were looking very helpless because they couldn't do anything to save the school property, and they were watching each and everything from the terrace, and they were seeing the depredations means attacks to destroy something. एलिफेंट ने जितने भी अटैक्स किए थे सभी चीज़ों पर, वो जो है सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता हुआ घूम रहा था, उनको सबको डैमेज कर दिया था सारी चीज़ों को बिल्कुल. वो सब जो है पूरा सीन वहाँ से देख रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. देयर वॉज नो बडी, नॉट अ सोल मीन्स नो बडी, नॉट अ ह्यूमन बींग, सिंगल ह्यूमन बींग वॉज देयर on the ground because everyone was frightened with the elephant and they wanted to save themselves. So they went, and some children went into the school rooms and they shut the doors very tightly, and teachers also climbed up on the terrace on the building. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. All the streets were empty. Nobody was there in the streets also. It was looking as if inhabitants means people who live there of the street of the entire town had suddenly disappeared. They have disappeared. यानी कि जितने भी लोग जो उन गलियों में रहते थे, उस टाउन में रहते थे, वो एकदम से जैसे कहीं पर गायब हो गए हैं. सो द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी. देयर वॉज नथिंग, नोबडी, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग वॉज देयर इन द स्कूल ग्राउंड और इन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन. एवरीवन वॉज फ्राइटेंड विद द एलिफेंट. I was studying in the junior class at that time. Now Ishwaran says about himself that he was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. He was also watching because that was his school also, and he was in the school when the elephant destroyed everything, and he was watching all this scene from the school rooftop of the school. I don't know what came over me suddenly. Now Ishwaran says that he doesn't know that what idea came in his mind at once suddenly. He grabbed a cane from the hands of the teacher, one of the teachers. उसने क्या किया, एकदम से जो है एक टीचर के हाथ से छड़ी ले ली and ran down the stairs, and he came down the stairs and into the open, खुले में, in the ground area. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree.
अब जो हाथी था वो बुरी तरह से घुर्रा रहा था, बुरी तरह से गरज रहा था और उसने जो है क्या किया, एक जो पेड़ की एक टहनी थी उसको जो है उसकी तरफ जो है फेंक दिया, उड़ेल दिया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसको उसने अपने ट्रंक में, अपने सूंड में जो है उठा रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लोट ऑफ mud and dust. The elephant was stamping its feet also, and it was with the stamping his feet, its feet, he was kicking up a lot of mud, lot of dust with it. वो जैसे ही अपने पैरों को उछाल करके एकदम से ज़मीन पर पटक रहा था, उसके साथ जो है बहुत सारा डस्ट और जो है मड, कीचड़ ऊपर उठ रहा था। It looked frightening. This scene was very frightening, fearful. But I moved slowly towards it. But I had some dare that time, and I moved slowly towards it. Stick was in my hand. People were watching the scene, hypnotized from the nearby housetops. और सभी लोग जो है आसपास की, जो स्कूल के आसपास की घर थे, उनकी छतों से खड़े होकर के जो है एक टक जो है इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, जो हाथी था वो मेरी तरफ बड़े गुस्से में देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, ही वॉज रेडी टू हिट मी। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। नाउ द एलिफेंट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड इट ट्रम्पेटेड लाउडली, और जो है अपना सूंड उठा करके जो उसने बहुत तेज़ी से जो है उसको गर्जना की उसकी। एट दैट मोमेंट द एलिफेंट cried very loudly. At that moment I moved forward and mustering all my force. Mustering means gathering. At that moment, when the elephant was trumpeting loudly, I moved towards the elephant and I gathered all my force. Hacked means hit its third toenail on the quick. और मैंने जो है इसका जो थर्ड टूनेल था उसके ऊपर जो है बहुत ज़ोर से हिट किया, मारा with the stick. The beast looked stunned for the moment. और ये जो जानवर था एक क्षण के लिए जो है बिल्कुल सुन्न हो गया था। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर ये जो है सिर से पैर तक कपकपाया, एंड कोलैप्स्ड, और बेहोश होकर के नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस पॉइंट पे जो है ईश्वरन अपनी कहानी को अनफिनिश्ड छोड़ देता था। एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर जो है खड़ा हो जाता था और क्या कहना शुरू कर देता था, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, गैस चला के आता हूँ ताकि जो है डिनर गर्म कर सकूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र हु वॉज लिसनिंग दिस कंप्लीट इंसिडेंट विद फुल अटेंशन, ही वुड रिमेन stunned like the elephant. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. और जब ईश्वरन जो है अपना काम करके वापस लौटता है तो वो स्टोरी को वहीं से दोबारा स्टार्ट नहीं करता जहाँ से उसने छोड़ा था, उसी धागे को नहीं पकड़ता जहाँ से उसने छोड़ा था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, और महेंद्र जो है उसको रिमाइंड करवाता था, याद दिलवाता था कि तुम्हारा जो कहानी का कंक्लूजन है, लास्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट है, वो अभी भी पेंडिंग है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. नाउ ही स्टार्ट्स हिज स्टोरी फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इट. Ishwaran says that then when the elephant was elephant shivered and it collapsed on the earth, on the ground, then a veterinary doctor was called. Summoned means called, to check out the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. ईश्वरन क्या करता था, वो बड़ी जो है ऐसा अपने आप को दिखाता। श्रग कैजुअली मीन्स अपनी कंधों को जो है इस तरह से उठाता था जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है।
और 2 दिन के बाद जो है उस हाथी का महावत उसको जंगल में लेकर के चला जाता है. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? नाउ मिस्टर Mahindra, who is a supervisor, asked to Ishwaran that how you managed it, where you learnt to do that with the beast to make it unconscious. तुमने ये कैसे सीखा कि एक जो है बीस्ट को, इतने बड़े भयंकर जानवर को जो है अनकॉन्शियस कैसे किया जाए? Where did you learn this art? It is something to do with the Japanese art. Now Ishwaran tells him that it is something to do with the Japanese art. It is like the Japanese art, I think, sir. कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, जिसको जो है कराटे और जूजित्सु बोला जाता है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं सुना था. इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम. यू सी, कुछ समय के लिए जो है ये नर्वस सिस्टम को जो है पैरालाइज कर देती है, काम नहीं करता है, जैसा कि आपने देखा. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Now the author tells about Ishwaran that he was such kind of a man that he never passed a single day without any story which was full of adventure, horror and suspense. कि ईश्वरन ने एक दिन भी ऐसा नहीं जाने देता था कि जो पूरी अपनी एक कहानी ना सुनाता हो जो पूरी तरह से एडवेंचरस हो, हॉररफुल हो और सस्पेंसिकल हो. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. भले ही जो है स्टोरी जो है विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन महेंद्रा क्या करता था, उस कहानी को बड़ा एंजॉय करता था क्योंकि जो उसको बताने का तरीका होता था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इम्प्रेसिव होता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. ईश्वरन जो है महेंद्रा के क्वार्टर में जो है किसी टीवी की एब्सेंस जो है महसूस नहीं होने देता था, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है एंटरटेनिंग वो था. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" One morning when Mahendra was going for his walk on the side, he was taking his breakfast. Then Ishwaran asked him, "Sir, can I make something special for dinner tonight?" क्या मैं आज रात के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. वैसे भी आज जो है एक बहुत ही शुभ दिन है. ऑस्पिशियस मीन्स शुभ दिन. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, सर. हमारी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, हम जो है बहुत अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं. टू फीड द स्पिरिट्स, उन आत्माओं को खिलाने के लिए जो हमारी पूर्वजों की आत्माएं हैं, और वो दिन आज है, सर. और एज यू ऑल नो अबाउट विच डे ईश्वरन वॉज टॉकिंग टू महेंद्रा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट अमावस्या. So he was saying that on this day, according to our tradition, we all prepare delicacies to feed our spirits of our ancestors. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. और उस रात जो है महेंद्रा उस बहुत अच्छा खाना उसने पकवान जो है बनाए थे डिनर में, उनको एंजॉय करता है और इसके लिए जो है ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है ऑन हिज culinary skills. culinary skills मीन्स कुकिंग एबिलिटी, उसकी जो कुकिंग एबिलिटी है, योग्यता है, उसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट भी देता है. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. वो जो है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और अनएक्सपेक्टेडली उसने क्या कर दिया, तभी एक कहानी की शुरुआत कर दी जो कि फुल ऑफ सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड थी. घोस्ट और हॉरर से रिलेटेड जो कहानी थी उसकी उसने स्टार्टिंग कर दी. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. ना ईश्वरन स्टार्ट्स हिज स्टोरी with the introduction to the area where they were living. He says to Mahendra that, "Sir,
You know, this area where we are living now, where this factory is existing now, this area was once a burial ground, a क्रिमेशन ग्राउंड, एक जो है शव दफनाने का एक शमशान घाट होता था जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर ये जो है पूरा एरिया जिसमें फैक्ट्री है. He started. Mahendra was jerked out to the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब महेंद्र एकदम से जो है झटका दे करके उठता है जब उसकी ये बात सुन. इन द प्लेजेंट रेवरी मीन्स डे ड्रीम, जो वो जो है खुली आंखों से जिसके बारे में जिस चीज़ में खोया हुआ हो. ही ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, एक अच्छा खाना खाने के बाद जो है वो कहाँ पर जो है किस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है. ईश्वरन ने जो कहानी बताना शुरू किया था उसमें जो है खो जाता है. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड. और मैं ईश्वरन क्या बताता है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. मैं तो पहले दिन से ही जानता हूँ, जब मैं पहली बार जो है यहाँ पर आया था और मैंने जो है रास्ते में एक मनुष्य की जो है स्कल, खोपड़ी जो है गिरी हुई देखी थी. इवन नाउ आई कम अक्रॉस द नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और अभी भी मैं जो है बहुत सारी कई बार जो है ऐसी ही जो है बोन्स, हड्डियाँ और जो है खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो देखता हूँ. ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन अपनी बात जो है जारी रखता है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और वो जो है अपनी बात शुरू करता रहता है कि मैंने कब जो है कई बार मैंने रात को घोस्ट को देखा है. आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो. मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर आदमी हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन द एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. Now he starts telling his ghostly story that but once one horrible ghost of a woman. अब एक बहुत ही भयानक घोस्ट की बात करता है जो कि एक औरत का भूत है. which appears off and on at midnight during the full moon. पूरे चांद की चांदनी रात में जो है ये आधी रात के समय में दिखाई देता है. इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा नज़र आती है. और मेटेड हेयर, और उसके जो है बिखरे हुए बाल, और पूरा का पूरा जो है रिंकल्ड फेस है. श्रिवल्ड मीन्स रिंकल्ड, उसका पूरा रिंकल्ड फेस है. और उस लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग, और जो है किस तरह का नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे उसका जो स्केल्टन है वो किसको पकड़े हुए है, एक फेटस को अपने बाजुओं में लिए हुए हैं. फेटस मीन्स भ्रूण. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन. अब महेंद्र एकदम से जो उसकी बात सुन करके थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको बीच में ही टोकते हुए बोलता है. इंटरप्टेड मीन्स बीच में ही टोकना, इंटरफेयर करता है. बहुत ही ज़्यादा शार्पली, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बोलता है. यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी जो है भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये तो सिर्फ हमारी सोच का एक हिस्सा है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी ठीक करवाओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो जो है कमरा छोड़ देता है और सोने के लिए चला जाता है. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सेल्क अ कपल ऑफ डेज, और जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि इससे जो है ईश्वरन कुछ दिन के लिए जो है 1-2 दिन के लिए शांत रहेगा, चुप रहेगा, कि मेरी इस बात से जो है वो थोड़ा सा निराश रहेगा और 1-2 दिन के लिए ऐसी बातें नहीं करेगा. But next morning he was surprised
टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह क्या देखता है कि जो कुक था ईश्वरन था, उसको जो है उतना ही ज़्यादा चीयरफुल मूड में, उतना ही ज़्यादा बातें करते हुए देख करके वो बड़ा हैरान हो जाता है कि रात को मैंने इसको इतनी तरह से डांटा था और अभी भी ये उसी मूड में, उतने ही खुश मूड में जो है बातें कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन से जो है महेंद्रा क्या करता है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी जो पूरी पावरफुल बातें थी, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, थोड़ा सा अनईजी होकर के अपने बेड पर चला जाता है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अब ईश्वरन जब उसको ऐसी बातें बताता रहता है तो वो अपने बेड पर चला जाता है और हर रात जो है वो झांकता है, कहाँ पर देखता रहता है, डार्कनेस में, अंधेरे में, आउटसाइड द थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बेड के आगे ही जो है सामने एक खिड़की थी जिसमें से वो देखता रहता है, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और वो क्या चेक करता है कि जो है बाहरी खुले एरिया में जो है कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं है, जैसा कि ईश्वरन बता रहा है कि कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल पावर, सुपरनेचुरल पावर जो है वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी घोस्टली जो है शेप वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। अब लेकिन जो है महेंद्रा क्या देख पाता था, उसको कोई घोस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसको क्या दिखाई देता था, अंधेरे का भरा हुआ समुद्र, क्योंकि रात में जो है वहाँ पर लाइट सिर्फ जो है फैक्ट्री में ही जलती हुई दिखाई देती थी, लेकिन और जगह, सब जगह क्या दिखाई देता था, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। और दूर जो है फैक्ट्री में कई मील दूर जो है जगमगाती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। उसने हमेशा ही जो है फुल मून नाइट में, जो चांद की चांदनी रात में ज़मीन बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, मिल्क वाइट जो है लैंडस्केप दिखाई देता है, उसकी बड़ी प्रशंसा, उसको देख करके बड़ा खुश होता है वो। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन ईश्वरन की ये कहानी सुनने के बाद, फीमेल घोस्ट के बारे में सुनने के बाद, कि जो है ईश्वरन ने उसको बताया था कि फुल मून नाइट में जो है ऐसा एक लेडी का भूत जो है स्केल्टन के जैसा दिखाई देता है, तो उसने जो है डर के मारे बाहर झांकना, फुल मून नाइट में अपनी खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्रा जब सो रहा था तो वो जो है जग जाता है। क्या सुन करके जग जाता है, उसको जो है मून थोड़ी कराहने की, रोने की आवाज़ें जो है अपनी खिड़की के पास से सुनाई देती हैं। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड द फोर माइस। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली जो है किसी चूहे को पकड़ने के लिए जो है बोलती हुई आवाज़, साउंड्स निकालती हुई घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन ये साउंड जो है बहुत ही, गटरल मीन्स वेरी हार्श, इतनी ज़्यादा हार्श थी कि ये जो है बिल्ली की नज़र बिल्ली की नहीं थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. और he resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने पहले तो अपने आप को रोके रखा कि वो जो है खिड़की से बाहर जा कर के ना देखे, ताकि जो है एकदम से कुछ उसे ऐसा ना दिखाई दे, ऐसा सीन ना दिखाई दे जिससे उसकी जो हार्ट बीट ही रुक जाए। बट द वेलिंग became louder and less feline. अब जो आवाज़ें आ रही थी कराहने की, चिल्लाने की, वो जो है और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लग जाती हैं, और ये बिल्ली की आवाज़ें नहीं थी। फेलाइन मीन्स कैट प्रॉलिंग, ये बिल्ली की आवाज़ें नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक सकता था। लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। उसने अपनी खिड़की से बाहर जो है मून लाइट, चांद की चांदनी रात में जो चांदनी ज़मीन पर बिखरी हुई थी, उसमें जो है देखता है। देर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहाँ पर जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ी सी दूरी पर ही जो है एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, क्लाउड की जैसी जो है भयंकर सी कोई ऐसी आकृति उसको दिखाई दी, जो कि अपने हाथों में क्या लिए हुई थी, एक बंडल लिए हुए थी।
महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। अब महिंद्रा को जो है एकदम से पसीना आ जाता है, पसीने में भीग जाता है वो, और वापस से अपने पिलो पर जा कर के गिर जाता है, पेंटिंग और हाँफना शुरू कर देता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को रिकवर किया, धीरे धीरे जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, इस घासली एक्सपीरियंस को भूलने की कोशिश करता है, भयानक एक्सपीरियंस को, और इसके लिए जो है तर्क देना शुरू कर देता है कि शायद ये क्या था कि मेरे दिमाग पे ये चीज़ें जो है छाई हुई थी, उनकी वजह से जो है मेरे ऊपर मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड फाइनली ही कंक्लूडेड, और क्या कंक्लूजन देता है, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि जो है मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, सम ट्रिक दैट ही सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ये कोई ऐसी चाल है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जो है उसके ऊपर चली है, यानी कि उसके दिमाग में कई दिन से ये बात बैठी हुई थी और आज फुल मून नाइट थी, जिसकी वजह से जो है उसको जो चीज़ें वो दिमाग में रखता है वो परेशान करना शुरू कर रही थी। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, और फिर जो है वो सुबह उठ जाता है, उस टाइम तक सुबह हो जाती है सोचते सोचते। ही हैड अ बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने जो है स्नान किया और फिर ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमरी, पूरी पहली रात का जो भयानक दृश्य था वो उसके दिमाग से जो है हट गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन उसका वेलकम करता है एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, उसको जो है उसका लंच पैकेट देता है और उसका बैग देता है। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सैड, जैसे ही महिंद्रा जो है बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है, ईश्वरन क्या करता है, स्माइल करता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फेटस इन इट्स आर्म, यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप याद करो कि एक दिन मैं आपको जो है इसी फीमेल घोस्ट और उसके हाथ में एक फेटस के बारे में बात कर रहा था और आप मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे कि मैं ऐसी चीज़ें जो है ना सोचूं। वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, वैसे आपने कल रात को इसे देख लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं जो है ये करहाने की आवाज़ सुन करके भागा हुआ आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, और उसी समय पे जो है एक ठंडक सी महिंद्रा की अंदर जो है पहुंच जाती है, वो फिर से जो है कपकपा जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो जो है ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था और उसने नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो भागा हुआ अपनी ऑफिस की तरफ गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अपने हाथ में जो है एक पेपर लिए हुए था और वो क्या कर रहा था, उस भयानक जगह को जो है अगले ही दिन छोड़ने के लिए उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ से दे दिया था। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी about Ishwaran, who was a storyteller who always told very adventurous, horrorful stories to his master Mahindra. Mahindra was a supervisor in the firm and his job was transferable. So he used to go many sites for a long time and always accompanied by his cook Ishwaran. Ishwaran also worked like a TV for him because he was a good entertainer. But when Ishwaran told him the account of the full moon night ghost, Mahindra also got feared by it, and he saw a cloudy form on the full moon night, and he got feared with the incident. And he gave a resignation letter to the firm to leave that place, horrible place. So this was all about this chapter.